Hello, guys. Welcome to all of you. Right? So it is said that when it's going gets tough, it is the tough who gets going, isn't it? So I really want to tell you all that things around us is really getting tough, right? These days regarding this pandemic and COVID situation, all kind of news that we're hearing, isn't it? उसके बाद भी आप लोग अपने एम को राइट साथ लेके चल रहे हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 12th बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो रियली राइट सो रियली ग्रेट थिंग अबाउट दैट या सो सुपरग्रेड्स की टीम आप लोग को इस टफ टाइम में हेल्प करने के लिए एक सेशन लेकर आई है जहाँ पे जो बच्चे आईपी मैट इंदौर को लेके बहुत सीरियस हैं एंड मैथ्स के लिए वो चिंता करते रहते हैं कि यार कैसे हम लोग मैथ्स का कट ऑफ निकालेंगे पढ़ तो रहे हैं बट मार्क्स में वो कट ऑफ रह जाता है सो आज का जो सेशन है बहुत अच्छा आप लोग के लिए वर्क करेगा एंड इन सारे जो टेक्निक्स आप सीखोगे स्ट्रैटेजी आपको जो पता चलेंगी वो अप्लाई करोगे मॉक्स में तो डेफिनेटली यूल फाइंड कि यार ये चीज हमें पहले क्यों नहीं पता थी पढ़ तो रहे हैं बट साथ में कट ऑफ भी तो निकलना चाहिए सिर्फ मेहनत करने से चीजें बन रही है तो बात ही क्या है राइट इसमें हर कोई बच्चा कंपटीशन निकाल लेता है इजंट इट सो कुछ स्ट्रैटेजीज भी होती है कुछ टेक्निक्स भी होती हैं जिसको आज आप सीखें इस वीडियो के थ्रू एंड वी रियली लाइक टू हेल्प यू आउट to clear the cutoff, right? Let's see what are the mantra, guys. Be with me throughout the session. Okay, let's begin. As you all know, right, there are two sections in IP Mat Indore, right? One is essay that we call it short answer type questions asked, right? If I consider IP Mat 2020, so it has just 10 questions in it, okay? And each question had 4 marks if you get it right, and there was no negative marking. So if you, these are called short answer type. They're like type in. You to feed in the answer, whatever answer you obtain, you to feed in, you to type in, right? No options are given to that. So even if you get it wrong, no negative marking will be done. Next section was multiple choice question. We call it MCQ type questions, right? Total questions were 20. Again, it counts for what 80 marks because one question stands for again 4 marks per question, right? So total 80 marks, right? But since they are MCQs, if you get it wrong, 1 marks will be deducted. Correct? So plus 4 minus 1 was the ratings, right? They were the marking schemes in MCQ. Moving on. And obviously, third section was English. We're not talking about English section as such in this session. So moving on. Let us talk about short answer type questions, guys. So there were 10 questions considering to IPMAT 2020. Okay. The level was easy to moderate. They were not very difficult questions. Cutoff uh, was 20 marks out of 40. Okay. That means what? If you do 5 questions all correct, that means your cutoff is met, right? Good score could be 28, right? If you attempt 7 questions correct or 8 questions correct, with one wrong, something like this. So 28 marks आप लाते हो तो ये अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है इस सेक्शन के लिए, right? Time limit was half an hour, 30 minutes, and you to show your competency in that time period only, isn't it? एंड टॉपिक्स ऑलमोस्ट सभी कुछ आता है इसके अंदर राइट जैसे कि हम जानते हैं कि आईपी मेट इंदौर में जो भी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स होते हैं वो तो आते ही हैं बट हायर मैथ्स भी अच्छा खासा आता है इफ आई से कि 50-50% होता है तो कुछ गलत नहीं होगा राइट अगर हम बात करें कि कितना हायर मैथ्स के कोई टॉपिक्स आते हैं और कितना एप्टीट्यूड बेसिक एप्टीट्यूड के आते हैं तो ऑलमोस्ट इक्वल ही हो जाता है राइट टॉपिक्स फ्रॉम विच द क्वेश्चंस केम इन short answer type questions were arithmetic, geometry, functions, PNC, prob, and probability, right? And log के भी क्वेश्चंस आए थे. So this was essay. हम एमसीक्यू की बात करते हैं अगला सेक्शन जिसमें 20 क्वेश्चन थे तो जो मैंने ऐसे में टॉपिक्स बताए आपको वो टॉपिक्स तो थे ही एमसीक्यू में उसमें से क्वेश्चन आई थे एडिशनल टॉपिक जो थे मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं अगर आप देख सकते हैं राइट नंबर्स के भी क्वेश्चन थे सेट्स के भी थे ट्रिगो के भी थे और डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट और आया था ठीक है सो ये एडिशनल टॉपिक्स हो जाते हैं एमसीक्यू के अंदर एंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट की कट ऑफ निकालना कभी भी डिफिकल्ट पार्ट रहा है राइट अगर आप सोच समझी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ तो आप बोलोगे यार ये तो हमें पहले पता होता तो हम अभी तक मॉक में तो फोड़ चुके होते हैं इजंट इट सो कट ऑफ जो आई एम इंदौर ने अपनी वेबसाइट पर रखा है वो है 26 नंबर आउट ऑफ 80 बिकॉज 20 क्वेश्चन इंटू 4 इज 80 मार्क्स 26 नंबर आप ले आते हैं तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम कट ऑफ तो आपका मीट हो जाता है जो कि
कहते हैं कि आईपी में इंदौर में आपको सेक्शनल कट ऑफ मीट करना है, तो 26 नंबर 80 में से आप ला रहे हो आधे घंटे के अंदर, इसका भी सेक्शन टाइम लिमिट हाफ एन आवर था। ठीक है। और 38-40 मार्क्स इज अ गुड स्कोर। ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन सॉलिड कर लेते हैं तो आपकी 40 नंबर आ जाता है आधे घंटे में, so it's considered as a good score, guys. Yep. Time limit, as you can see, it was again half an hour. सो हम बात करते हैं कि भाई अगर हम टॉपर्स की बात करते हैं, टॉपर्स का मतलब ऐसे स्टूडेंट जो बचपन में उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, राइट, खेले हैं तो पढ़ाई भी कुछ जम के की है, राइट, और सुपर शार्प है, एंड दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो स्कूल में उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और अच्छे से प्रैक्टिस की है, खूब रफ रफ नोटबुक्स खूब सारी भरी हैं। तो दिस स्ट्रेटजी इज ओनली फॉर टॉपर्स, जो सुपर स्कोरर्स हैं ऑलरेडी, जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए। क्या गलती कर सकते हैं आप? You have to go for the kill. That means you should have the appetite to solve all the question. आईपीमेट इंदौर ने जो आप सजा के रखे हैं क्वेश्चंस आपको दिए एग्जाम में, आपको इतनी भूख है कि आप सारे खाने वाले हो, सारे क्रैक करने वाले हो सारे क्वेश्चन। ये एक एपेटाइट रहता है, माइंडसेट रहता है टॉपर का। ठीक है ना, तो वो तो है ही, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इस माइंडसेट से आप उतरोगे। ठीक है। अ, उसके बाद नंबर वन चीज, कीप योर ईगो असाइड। जब आपने सेक्शन ऐसे वाला सेक्शन या एमसीक्यू वाला सेक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो कभी भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, आई शुड नॉट से डिफिकल्ट बिकॉज आपके लिए डिफिकल्ट कुछ नहीं है, राइट, आपको सब कुछ तो बनता है। आई शुड नॉट से डिफिकल्ट, आई शुड से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, जो आपसे बन तो जाएगा, बट इट विल सर्टेनली टेक टाइम फॉर एनी पर्सन, यू ऑल्सो यूल टेक कंपेरेटिवली मोर टाइम। सो उसको आपको अवॉइड करना है, स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है, डेफर कर दो उसको, अटेम्प्ट करना बाद में करेंगे। ठीक है ना। सो यू शुड कीप योर ईगो असाइड कि मुझसे कैसे नहीं हो रहा है ये, मैं तो इसको करके रहूंगा, आई सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम चाइल्डहुड, लाइक स्कूल डेज आई बीन सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन। ठीक है, लगा रहता हूँ मैं घंटे भर 2 घंटा और बस क्रैक करके उठता हूँ। ये एग्जाम है मेरे भाई, दिस इज द एग्जाम। एग्जाम में वो ईगो आप रख के चलोगे तो आपका टाइम 10 मिनट कब चले जाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। ऐसा गलती करने के बाद भी हो सकता है आप बाकी जो आपके बैचमेट्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटर हैं, उनके आप स्कोर उसके बाद भी आप ऊपर ले आओ। ठीक है, पॉसिबल, क्योंकि आप बाकी सब क्वेश्चंस को आपने शायद 20 मिनट में निपटा दिया और एक क्वेश्चन आप 10 मिनट ले गए। क्यों? बिकॉज आप आपका ईगो ने उसको छोड़ा ही नहीं उस क्वेश्चन को। ऐसा हो सकता है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ईगो, कीप योर ईगो असाइड। ठीक है। कोई क्वेश्चन है टाइम कंज्यूमिंग तो उसको एंड में रखो, इट शुड बी द 10th क्वेश्चन। अगर आप ऐसे की बात करो तो उसको 10वां क्वेश्चन होना चाहिए, नॉट द सेकंड वन और थर्ड वन और फिफ्थ वन, दैट यू शुड अटेम्प्ट। ठीक है, नंबर वन, वो नहीं आना चाहिए आपके बीच में, आपके अटेम्प्ट के बीच में, आपके हाई स्कोर के बीच में। ठीक है, नंबर टू, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, राइट, आधे घंटे का जो टाइम आपको एक सेक्शन को मिला है, दोनों सेक्शंस को मिला आधा आधा घंटा, उसमें आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना है आपके टाइम का। कौन सा आप पहले करोगे, कौन सा आप बाद में करोगे, ठीक है, वो आप करके देखो, सॉर्टिंग करके रख लो कि पहले ये 5 करूंगा, फिर ये 3 करूंगा, फिर ये 2 क्वेश्चन करूंगा। ठीक है। या फिर अगर 20 क्वेश्चन के लिए आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में भी जा रहे हो, 20 क्वेश्चन है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये 15 क्वेश्चन है, मेरे को पहले ये करने हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो आई गो फॉर द नेक्स्ट 5। ठीक है। सो एक चीज का विश्वास हमेशा रखिए, टॉपर टॉपर कभी भी टॉपर नहीं बनता है अगर उसने इजी, आई कैन से द कैंडी और द कॉफी क्वेश्चंस छोड़ के, कोई टॉपर टॉपर नहीं बनता है। ठीक है ना, कोई भी 100% है या रैंक 1 है, उसने कैंडी क्वेश्चंस सारे पेपर में जो होंगे वो सारे अटेम्प्ट किए होंगे, पक्की बात है, कॉफी क्वेश्चंस भी किए होंगे। कॉफी फॉर मीन इट इज मॉडरेट क्वेश्चंस, कैंडी मीन्स वेरी इजी क्वेश्चंस, करेक्ट, एंड चिली मीन्स लाइक सो कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग और यू कैन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इस ऑर्डर में आपको उनको सर्च करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, और इस ऑर्डर में आपको अटेम्प्ट करना है। तो होगा क्या, कैंडी क्वेश्चन विल टेक वेरी लेस टाइम, बिकॉज आपने इतनी प्रैक्टिस की है, तो क्वेश्चन देखकर आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज टाइम की, तो कैंडी क्वेश्चन एवरेज टाइम से भी कम टाइम कंज्यूम करेगा, जल्दी हो जाएगा। और जब आप देखते हैं 5 मिनट में यू आर एबल टू सॉल्व लेट्स से 4 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस, और अभी भी 25 मिनट मेरे पास बचे हैं, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप समझ सकते हैं कहाँ जाएगा। 25 मिनट्स बचे हैं और मेरे पास सिर्फ 5 क्वेश्चन करने को है, अगर ऐसे सेक्शन की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर। सो और हम लोग करके देखेंगे कि ऐसा हो सकता है वाकई, विल विल प्रूव इट गाइस, जस्ट वेट। ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कैंडी, देन कॉफी एंड देन चिली, सर्च फॉर इट फर्स्ट एंड गो फॉर द किल। राइट, करना हमको सारे हैं, बट ऑर्डर मिस मत करना, ऑर्डर शुड बी लाइक दिस। ठीक है, एंड यूल एट द एंड ऑफ द डे यूल फाइंड कि यार ऑर्डर सही से सीक्वेंस रखने से मेरा स्कोर एकदम अपलिफ्ट हो गया।
एकदम मेरा स्कोर पुश हो गया। ठीक है। सो कीप योर ईगो असाइड, मैनेज योर टाइम प्रॉपरली वेल, राइट, एंड द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन और अटेम्प्टिंग ऑफ द क्वेश्चन शुड बी कैंडी, देन कॉफी, एंड देन chili guys. If time permits, then only you'll be doing chili questions, right? And the toppers will find out time to do chili, है ना? उनको challenges में बड़ा मजा आता है कि challenges क्वेश्चन कौन से चिली वाला है, तो टाइम निकाल ही लेंगे, फटाफट करना है आपको, कैंडी कॉफी फटाफट करना है, 10 मिनट बच गए, अब चलो चिली क्वेश्चन निपटाते हैं, राइट? हमें तो सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो दैट इज द टॉपर स्ट्रेटजी एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड स्कोर, बेटर स्कोर, द गॉड स्कोर, सेंट आउट ऑफ सेंट. Okay. So this second strategy is for the people who are hard workers, who have the potential, and they are working day in, day out to be the topper or want to get a good rank or at least get shortlisted in IMNDOR or any good college. So it is about them. I can say it's for students who are average or just above average, right? उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मेहनत बहुत करते हैं बच्चे, राइट? सो सबसे पहले जो आपने तैयारी की है, इतना आपने मेहनत किया हुआ है साल भर, सो जस्ट ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन गाइस। अपने तैयारी के ऊपर थोड़ा सा यकीन करो, ठीक है? यू नो एवरीथिंग, ओके? आपकी स्पीड शायद थोड़ी सी कम हो एज कम्पेयर टू द टॉपर आई डिस्कस, है ना? जो गॉड गिफ्टेड है उनकी स्पीड, फट 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 फटाफट वो करने लग जाते हैं क्वेश्चन को, और हमने हमने अपने आप को बिल्ड किया हुआ है, राइट? सो अगर 10 क्वेश्चन आए हैं ऐसे में, 20 क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू में, तो उसमें जो चिली क्वेश्चन होंगे, वेरी टफ, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो आप उनको हटा दीजिए, ठीक है? उनको आपको सॉल्व नहीं करना है, तो करने कौन से हैं? कैंडी एंड कॉफी, दैट इज इट। और इतने सालों से हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर पेपर सेटर है, तो पेपर सेटर इतने क्वेश्चन जरूर डालते हैं कैंडी और कॉफी के, कि अगर हमने उनको सारे क्वेश्चंस कैंडी कॉफी हमने चुन लिए, फटाफट चुन लिए, सिलेक्ट कर लिए, और उन सिलेक्टेड कैंडी कॉफी क्वेश्चंस को अच्छे से, कॉन्फिडेंटली, राइट, एक हाई एक्यूरेसी से अटेम्प्ट भर कर दिया इन दैट लिमिटेड टाइम, ये जॉब इज डन। कट ऑफ क्लियर करने के लिए सफिशिएंट होते हैं कैंडी और कॉफी क्वेश्चन, बिलीव मी, बिलीव माय वर्ड्स। इवन इफ यू डू नॉट गेट टाइम टू डू फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस और चिली क्वेश्चंस, डजंट मैटर। सो व्हाट इज बॉदरिंग यू? आपको बॉदर कर क्या रहा है? क्या आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, लाइक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, जहां पे आपको हाई स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है? वो तभी पॉसिबल है जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, करेक्ट? यहाँ पे बात सारे क्वेश्चंस की नहीं है, आपकी एक्यूरेसी लेवल्स हाई होने चाहिए। तो इजी और मॉडरेट आपने सॉलिड कर लिया, एंड ये जॉब इज डन। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ चिली क्वेश्चंस, अवॉइड इट सिंपली। जितना इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी होता है, रिजेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, कौन से मुझे नहीं करना है, ठीक है? तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आपका पेपर स्टार्ट होता है, टाइमर शुरू होता है, आपको एक राउंड ऑफ क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, और उसकी जो नंबरिंग है, कौन से आपको करना है, उनकी नंबरिंग अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लेना चाहिए। उसमें भी आप इजी मॉडरेट लिख सकते हैं, ई फॉर इजी, एम फॉर मॉडरेट, और पहले इजी करो आपके हिसाब से जो इजी है, फिर मॉडरेट करो। चिली की हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमें नहीं करना है, ठीक है? तो स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ता है? आप सीधे कट ऑफ देखोगे कि मेरे दोस्त ने इतने मार्क्स ले आया, मैं तो उसके आधे भी नहीं ले पाया, राइट? तो पहले आप कट ऑफ के पास तो आओ, कट ऑफ तो क्लियर करो, उसके बाद हम कट ऑफ के और आगे जाने की बात करेंगे। तो चीजें हर कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है? तो गेट दैट कट ऑफ मार्क्स फर्स्ट, ओके? तो दिस इज व्हाट यू टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि इतने क्वेश्चंस कैंडी और कॉफी होते जरूर है हर पेपर में, जिससे हम लोग अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ट्रस्ट माय वर्ड्स गाइस, एंड अप्लाई दिस थिंग इन द नेक्स्ट मॉक दैट विल बी अटेम्प्टिंग, ओके? आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स रियली वांट टू सी, तो 20 आईपी मैट 2020 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। फर्स्ट 5 यू विल फाइंड इट फ्रॉम ऐसे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और उसकी हम एग्जांपल लेके चलते हैं, बिकॉज आगे हमारे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग आईपी मैट 2020, आईपी मैट 2019 को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ टेक्निक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ बेटर वे एंड द फास्टर वे, ठीक है? तो पूरा पेपर आज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि यार वाकई पेपर इतना डिफिकल्ट होता है क्या? अगर मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ, मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है? सो क्या मैं शॉर्ट लिस्ट हो पाऊंगा? क्या मैं मैथ्स के कट ऑफ क्लियर कर सकता हूँ? क्या मैथ्स इतनी टफ होती है आईपी मट इंदौर में? तो थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ मैं, एंड थोड़ा सा बी विथ मी जस्ट फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस, राइट? आई जस्ट टेकन 5 क्वेश्चंस, सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप चाहें तो ट्राई करने का कोशिश करें, ठीक है? रीड करने के बाद पॉज कर लीजिए वीडियो, एंड आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू।
The question says, in a division problem, product of quotient and the remainder is 24, right? While their sum is 10. If the divisor is 5, then dividend is. ठीक है, अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, या ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे ऑप्शंस आपको नहीं दिए, राइट? तो कैसे करोगे इसको? इसके लिए बेसिक्स आपने 6 7 क्लास में पढ़ा हुआ है, राइट? यू नो, आई रीड फॉर यू, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। In a division problem, product of quotient and the remainder is 24, while their sum is 10. If the divisor is 5, then dividend is. तो ये जो टर्म्स है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, इनके रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दिस इज फंडामेंटल। सो मेरे ख्याल से तो सभी को पता होगा, राइट? दिस इज कोशेंट divisor into quotient plus remainder gives you the dividend, right? डिविडेंड मतलब जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जिससे करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, मैंने डी लिखा हुआ है। एंड क्यू इज द जो भी आपका मल्टीपल आता है, क्लोज मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड कोशेंट, एंड जो रिमाइंडर बच जाता है दैट इज आर। करेक्ट। सो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए। अब जो चीज दी हुई है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। एक डिवीजन प्रॉब्लम है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर, दैट मीन्स क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर इज 24, ये गिवन है। और क्यू देयर सम, दैट मीन्स क्यू और आर का सम इज व्हाट, 10। ये आपको दिया हुआ है। और डिवाइजर की वैल्यू 5 दी है, तो बेसिकली 5 इंटू क्यू प्लस आर, ऐसा कुछ है। और क्यू आर का रिलेशन यहाँ पे प्रोडक्ट और सम का यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वैल्यूज इतनी इजी है कि हिडन ट्रायल से भी आप इसको कर ही सकते हैं। क्यू आर 24 कैसे होगा? 8 थ्री कर दो, है ना? 8 थ्री हो सकता है, इट कुड बी 8 क्रॉस 3। अभी मैं प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ। 8 3 24 कर लो या 6 4 24 कर लो, ठीक है, दो केसेस बनते हैं। बट जब उसने सम बोल दिया 10 है, तो ऑब्वियसली केस कैंसिल हो गया। 8 + 3 इज नॉट 10, 6 + 4 इज 10। सो 6 4 श्योर। अब इसमें कौन 6 होगा और कौन 4 होगा, दैट कुड बी अ डिलेमा, राइट? बट अगेन अप्लाई करना है आपको कॉमन सेंस। ये आईपी मेट इंदौर है, तो इतना वो टिंज तो रखेगा, राइट? कि यार थोड़ा सा सोचना पड़े आपको। यहाँ पे स्टूडेंट कैन गेट कंफ्यूज, 6 कौन, और क्योंकि यहाँ पे आप क्यू की जगह 6 रखोगे, यहाँ 4 रखोगे, थिंग्स विल गेट चेंज। और 4 रखोगे, 6 करोगे, तो विल गेट 2 आंसर्स अगर आप कंफ्यूज हैं तो। सो लिसन केयरफुली। नंबर को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर हैज टू बी लेस देन 5, करेक्ट? एंड दैट इज व्हाई दिस हैज टू बी व्हाट, 4। ठीक है ना? तो ये हमारा कंफर्म हो गया, रिमाइंडर इज 4 एंड द क्वोशिएंट इज 6। ओके, विल सब्स्टिट्यूट 5 into 6 plus what, 4। So answer is what, 34। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो ये जो रिलेशन है, मेरे ख्याल से ये हमने 6 क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन था। इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट रेट इट वेरी डिफिकल्ट। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट? आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, और एक बेसिक सा क्वेश्चन है। रीड करता हूँ आपके लिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -4 3, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? -4 3 इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है -4 3 टू द x² + y² = 1, और यू कैन से 1²। ठीक है, तो मुझे सर्कल की इक्वेशन दिख रही है, इट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल से इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। थोड़ा सा अगर हम रफ डायग्राम भी बना के देखें, ठीक है, सो आई थिंक सर्कल की इक्वेशन जो होती है, दैट इज x² + y² = 1²। 1 मतलब 1², राइट? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। 1 विल बी अ रेडियस। ओके, तो रफ थोड़ा बना के देखते हैं आपके लिए। ठीक है, ये इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0, ओरिजिन पे सेंटर रहेगा। ठीक है, एंड 1 इज द, मान लेते हैं ये 1 है। ठीक है, दिस इज 1 1। ठीक है, दिस इज रेडियस, ऐसा बोला है उसने। अब डायग्राम प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहा है, बट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दिस इज 1 1 1 1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 1 0। ठीक है, ये -1 0 एंड 0 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और 0 - 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -4 3, -4 3 -4, ये 1 है, तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा, लेट से, है ना? ऐसा बोल देते हैं, -4 3। ठीक है, यहाँ से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढनी है सर्कल के ऊपर। यही हो सकता है, यहाँ से इसको आपने ज्वाइन किया ऐसा, और इसको एक्सटेंड करोगे तो सेंटर पे मिल भी जाएगा। और ये रेडियस आपको, ये रेडियस है जिसकी वैल्यू 1 हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो पूछा है ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी पूछा हुआ है आपसे। तो मुश्किल है क्या? इस पॉइंट को हम P मान लें, इसको हम O मान लें, राइट, इसको M मान लें,
पूछा कि आपसे पीएम की डिस्टेंस पूछी है, पीएम कितना होगा, और हमें पीओ क्या है निकाल सकते हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो हम वही पढ़ते हैं, राइट। कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं और दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो ओरिजिन की पता ही है, 0 0 और -4 3, विल फाइंड द डिस्टेंस। कितना आएगा? इफ यू नो डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, पी ओ वुड बी इक्वल टू व्हाट, -4 -0 होल स्क्वायर। तो ये -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 - 0 इज 3, उसका होल स्क्वायर इज 9, ठीक है। तो √25 इज व्हाट, 5। तो ये पीओ आ गया गाइस। और पीओ में से जो रेडियस है, एमओ की वैल्यू माइनस करोगे, पीओ माइनस एमओ विल गिव व्हाट, पीएम। ये 5 है, इसमें से एक कम कर दो तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पता होने चाहिए, एंड लाइक आंसर इज देयर। और विजुअलाइजेशन से भी चीजें हो जाती है, अगर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, तो देखकर वो हो रहा है उसमें डेफिनेटली, ठीक है। तो नथिंग डिफिकल्ट आई से। तो दो क्वेश्चन हमारे हो गए, एक एक मिनट भी मान लिया अपन ने, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक मिनट भी लग रहा है आपको, अदरवाइज जो बच्चा टॉपर कैटेगरी का है उसको तो देख कर ही समझ में आ जाएगा कि यार कितना टाइम लगना है इसमें, तो आंसर यही होगा, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये भी आईपी में 2020 की ही बात करूं और ऐसे सेक्शन के क्वेश्चन हैं ये। मिनिमम वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की, एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग इतने सालों से ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को गाइस, तो ये तो हमारे स्टूडेंट्स के नोट्स में इस टाइप के क्वेश्चन लिखे रहते हैं, नोट्स में, क्लास में हम करवाते हैं। तो नोट्स में से कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। यू विल फील कि यार ये तो हमने किया है, रिवाइज किया है इसको 50 बार। तो टॉपर को और रैंकर्स को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चन करने की, उन्हें पता है कि करते क्या है, ठीक है। सो फिर भी आप व्यूअर्स हैं, सो आपको मैं हिंट देता हूं, आपको नहीं पता है तो करते कैसा है। तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालते हैं, मॉड के अंदर की जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम इक्वेट टू जीरो करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, इसको इक्वेट करें 3 - एक्स को जीरो से, तो एक्स की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2। सेकंड, इसको इक्वेट करोगे जीरो से तो एक्स विल बी -2, इसको इक्वेट करोगे तो एक्स विल बी, ठीक है, विल गेट 5। सो इनको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, वी से क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स का, क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग जो होता है वो ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, इसका फंक्शन का ग्राफ तो होता ही है, इफ देयर इज अ फंक्शन इट हैज टू हैव अ ग्राफ, करेक्ट। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप्स चेंज होती है। तो ये पॉइंट्स होता है, एक्स की वैल्यू 3 -2 और 5 के ऊपर ग्राफ के स्लोप्स चेंज होती हैं, तो उन जहाँ पे स्लोप चेंज होती है हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, कैसा निकालना सिखा दिया। मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू जीरो कर लो, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। नाउ अब आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये गारंटीड है कि फंक्शन की वैल्यू आप जो मिनिमम होगी वो तीन में से किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पे ही होगी, ठीक है। अभी डिटेल में हम जा नहीं सकते, बट आई एम टेलिंग यू, तीन में से किसी क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लोएस्ट आती है, ठीक है। तो एफ ऑफ क्या करोगे, एफ ऑफ आप 3 निकाल लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, कुछ आएगा, लेट से ए आ गया, कुछ भी ए मैंने लिख दिया, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें जहां जहां पे एक्स है वहां पे आपको 3 रख के सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। एंड देन -2 रख दीजिए, एफ ऑफ -2 कैलकुलेट कीजिए, लेट से बी आ गया, एंड एफ ऑफ 5 निकाल लीजिए, लेट से सी आ गया। तो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ लॉग प्रॉब्लम, राइट। लॉगरिथम्स का एक क्वेश्चन है, और अगर आपने इसके सारे प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, सारे फॉर्मूलेज आपको आते हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। दो या तीन प्रॉपर्टीज एक एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हैं, वो आप लगा देते हैं एंड यू गेट द आंसर गाइस, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं, 0.04 की पावर इज लॉग ऑफ 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 टू द बेस √5। तो इट इज लुकिंग बिट कॉम्प्लिकेटेड कि यार कैसे करेंगे, राइट। बट अगर आपको प्रॉपर्टीज सारी पता है लॉग की, फॉर्मुलेज एंड एवरीथिंग, सो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग इशू, राइट। जैसे 0.04 की पावर दिस लॉग समथिंग है, तो एक ही रूल आपको पता होना चाहिए कि वो बेस है ए, और उसका पावर है log ऑफ लेट्स से x, और इस log का जो बेस है वो भी a है, ठीक है। दिस शुड बी सेम, एब्सोल्युटली सेम, तो इसका जो वैल्यू आता है वो x होता है, ठीक है। दिस इज नंबर वन प्रॉपर्टी, ठीक। उसके बाद log ऑफ जो बेस है वो √5 है, ठीक है।
रूट 5 है, तो उस रूट को भी आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है। तो उसमें जो प्रॉपर्टी लगती है वो लगती है log ऑफ a टू द पावर m है, और जो बेस है वो b की पावर n है। तो ये जो पावर्स हैं बाहर फ्रैक्शन में आ जाता है, m डिवाइडेड बाय n इंटू वॉट, log ऑफ a टू द बेस b। ये दो प्रॉपर्टीज उसको आप अप्लाई करें एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। कहीं ना कहीं आप इसको बेस 5 कर देंगे, इसकी जो पावर हाफ है उसको आप बाहर ले आएंगे यूजिंग दिस। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। एंड 0.04 को कहीं ना कहीं 5 में आप ला सकते हैं, बिकॉज 0.04 इज 4/100 एंड 4/100 इज 1/25। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अगेन वो 5 की पावर -2 हो जाएगा ऊपर ले आएंगे तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 5 का रिलेशन है, बिकॉज हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी ए हो और यहाँ पे भी ए हो, तो कहीं ना कहीं बाहर भी हमने उसको 5 ले आया, 5 की पावर -2, और यहाँ पे भी 5 की पावर हाफ है, और हाफ को हम इस फॉर्मूले से बाहर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो इट वुड बी सॉल्व इजीली, नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगेन बहुत हुआ तो आप 30 सेकंड्स 40 सेकंड में इसको आराम से बना सकते हैं, बेस्ड ऑन टू प्रॉपर्टीज। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, शॉर्ट आंसर के अंदर ही आया था आईपीमेट इंदौर में 2020 में, एंड यू कैन रीड इट। इट्स सो लेंदी, ऐसा लगता है 4 लाइन का है, हम कैसे करेंगे, राइट? बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब एक बार आप खुद से करेंगे यू विल फील कॉन्फिडेंट, मैं तो आपको बता ही दूंगा, वो इशू नहीं है। और ये कहना चाह रहा हूं मैं कि यार 10 में से 5 क्वेश्चन अगर हम इतनी जल्दी कर सकते हैं तो डेफिनेटली पूरा पेपर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और कितना ही डिफिकल्ट पूछ रहा है आईपीमेट इंदौर, ये देखा जाए। ठीक है, सो डोंट गो ऑन द length of the question, just read it properly. It says in a 4 digit number, आप रीड करें। It says in a 4 digit number the product of 1000 digit and unit date is 0। ठीक है, तो अगर हम जब लिखते हैं 4 digit नंबर तो हम लिखते हैं A, let's say B, C and D। ठीक है, ये वंस प्लेस पे हो गया, O फॉर वंस, दिस इज टेंस प्लेस पे डिजिट है B, B 100 प्लेस पे आ गया, और A 1000 प्लेस पे TH लिख देता है। ठीक है, ये पोजीशन रख दी हमने, ये हमारा 4 digit का नंबर है। Correct? And as per the question, it says product of 1000 digit and unit digit is 0. That means A cross D is 0. Product is 0. That means one of them has to be 0. या तो A 0 है या तो D 0 है। और A अगर 0 हो गया, अगर ये 0 हो जाएगा तो how would it be a 4 digit number? तो that means D को ही 0 होना पड़ेगा। A would be a non-zero entity। ठीक है, तो D कंफर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 0। इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल डिजिट्स इज 18। बी और सी का जो प्रोडक्ट है, इधर लिख देता हूं मैं, बी क्रॉस सी जो है वो 18 है। ठीक है, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा आपका माइंड कि यार बी और सी है तो डिजिट्स, दे कैन नॉट गो बियॉन्ड 9। डिजिट्स है तो 9 से ज्यादा तो जाएगा नहीं, तो प्रोडक्ट 18 कैसे आएगा? आप बोलोगे सर 9 टू भी आता है और 6 थ्री भी आता है। करेक्ट, यहाँ तक बात सही है। आगे देखते हैं। सेकंड लाइन में उसने बोला था प्रोडक्ट 0 है एडी का और डिफरेंस उनका 7 है। वी मिस्ड आउट ऑन दैट। सो एडी का प्रोडक्ट 0 और डिफरेंस 7, तो ऑब्वियसली जब डी 0 हो गया है और डिफरेंस हमको 7 चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 7 ही होगी, ताकि इनका डिफरेंस कितना है? 7 - 0 इज 7। तो ए और डी की वैल्यू कंफर्म हो गई, ए शुड बी 7 एंड बी शुड बी 0। उसके बाद बीसी का प्रोडक्ट 18 बोला था, तो दो वेज हमें मिले, 9 2 और 6 3। आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं? 1000 digit इज एज मच मोर देन यूनिट डिजिट। जो 1000 digit है यूनिट डिजिट से उतना ही अधिक है, उतना ही ज्यादा है, उतना ही मोर है। कितना ज्यादा देख लीजिए, इट इज 7 मोर। ठीक है, एज द 100 digit इज मोर देन 10 digit। तो बी है सी से उतना ही ज्यादा होगा जितना 7 0 से ज्यादा होगा, तो इनका डिफरेंस कितना है? 7। तो बी और सी का डिफरेंस भी कितना होगा? 7। इनफैक्ट बी वुड बी 7 मोर देन सी। तो ये बी सी हमारे दो केसेस निकले थे, 9 2 एंड 6 3। तो बी शुड बी 7 मोर देन सी, तो यही एक केस हमारे पास वैलिड आ पा रहा है, तो ये वाला केस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और बी सी की वैल्यू 9 2 कंफर्म हो जाएगी। राइट, 9 एंड 2। तो आपसे पूछा था 4 digit नंबर क्या होगा, करेक्ट? तो आप उसके ऊपर स्क्रीन आपको टाइप इन करना पड़ता है 7920, दैट विल बी योर 4 digit नंबर। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन, एंड डोंट गो बाय द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। कभी कभी एक लाइन के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कभी कभी 4 लाइन के क्वेश्चन भी आसान होता है, एज यू कैन सी दैट। ठीक है, सो ये जो 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, while explaining probably I would have taken more time, but आप खुद से सोचो frankly कि आप ये खुद करते with the given knowledge and everything, आपको जो आपने प्रिपरेशन किया हुआ है, तो कितना आपको टाइम लगता, राइट? सो आई डोंट थिंक मोर देन 10 मिनट्स, बहुत भी हो जाए तो 10 मिनट। 10 मिनट में अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है? अभी भी आधे घंटे के सेक्शन के हिसाब से अभी भी आपके पास 20 मिनट बचता है।
तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना अच्छा हो जाता है अगर आप सिलेक्टेड इजी क्वेश्चंस पहले करें, हम बोलते हैं कैंडी करें, फिर कॉफी क्वेश्चन करें, तो उतने में आपका कट ऑफ निकल जाता है। अगर आपने 5 क्वेश्चन ये 10 मिनट में या 15 मिनट में भी कर लिए होते हैं, ठीक है, कंसिडरिंग द, आपको अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टीज की हाई लग रही है तो भी आप 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं लेंगे अगर आपका सिलेक्शन सही से हो गया है तो। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे सही कर दिए, 5 4 20 मार्क्स होते हैं, जो कि लास्ट ईयर आई एम इंदौर ने कट ऑफ रखा था 20 मार्क्स। तो आपका कट ऑफ तो इतने में क्रैक हो रहा है। ठीक है। सो अब जो टाइम बचा है उसमें आप और करोगे तो कट ऑफ से काफी आगे चले जाओगे। इस सेक्शन की मैंने बात की है। आगे आने वाले गाइस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की, मैथ्स में दूसरे सेक्शंस के। इनफैक्ट विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू, और देखिए आप उसको कैसे टेक्निक से क्रैक किया जाता है। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट फ्यू वीडियो गाइस, 20 भी हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स, और 19 भी हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। विल ब्रिंग दो सीरीज ऑफ सेशंस फॉर यू इन दिस कमिंग फ्यू डेज, राइट। एंड हैव ट्रस्ट, हैव फेथ इन योर सेल्फ कि यार इतने क्वेश्चन तो होते ही हैं जिससे हमें कट ऑफ निकल जाता है, बस हमें सिलेक्ट करना है और एक्यूरेटली उनको डन करना है, इतना ही करना है बस। तो आई एम वेरी होपफुल यू इट विल बी हेल्पफुल सेशन फॉर यू, एंड इट विल बी प्रूव अ ग्रेट फॉर यू व्हेन यू विल अप्लाई ऑल दिस टेक्निक्स इन योर मॉक्स दैट यू आर टेकिंग राइट नाउ। चलिए, ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले सेशंस में जहाँ पे हम आईपी मेट इंदौर के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रियल प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, राइट। टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।